This video is on height and distance. Question number 7, exercise 9.2, second video on height and distance, exercise 9.1 है. In question number 7, from a point on the ground, the angle of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Now there is a one transmission tower fixed on the building. Suppose this AB is building and this BC is the transmission tower. Now the angle of from a point on the ground, angle of elevations of the bottom and the top of the transmission towers are 45 degree and 60 degree respectively. Let this point is D. Find the height of the transmission tower. This H you have to find out. Height of the building is 20 meter. This is the given quantities. Height of the transmission towers you have to find it out. Means in triangles A, B and D, angle D 45 degree. Therefore AD upon AB is adjacent side upon opposite side is equal to cot 45 degree, which is 1. This implies AD is equal to AB is equal to 20 meter. इसको आप नंबर 1 कह लीजिए. Now in triangles, बड़ी triangle AD and C, angle D is now 60 degree. AC upon AD, that is opposite side upon adjacent side, is your tangent 60 degree. Now AC is 20 plus H upon 20 is root 3, tangent 60 degree root 3. 20 plus H is equal to 20 root 3. So H is equal to 20 root 3 minus 20, that is root 3 minus 1 meter. This is question number 7 and this is the height of the transmission tower. Now let me take question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on a pedestal. Same questions है. Now AB be a pedestal. And a statue, that is BC, is a statue. Height is 1.6 meter. Angle of elevation of the top of the statue is
60 degree. This is the top of the statue, angle of elevation is 60 degree. And angle of elevation of the top of the pedestal कह लो या foot of the statue कह लो, this is 45 degree. हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी, आप इसको h ले लो. सेम, पहले छोटी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज 45 डिग्री. ए सी अपॉन एच मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड is cot 45 degree. Therefore AC is equal to H आ जाएगा. Now in triangles A C D A D अपॉन AC, ये AD कह लो. That is opposite side upon adjacent side will be equal to tangent 60 degree will be equal to root 3. अब AD is H plus 1.6 upon H is root 3. H plus 1.6 is equal to root 3H. Next, 1.6 is H common, root 3 minus 1. Therefore H is 1.6 divided by root 3 minus 1. रैशनलाइज कर लो. 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 3 प्लस 1, 0.8 इंटू, दिस इज द आंसर. H means this is called the height of the pedestal. So this is your question number 8. Let me take question number 9. The angle of elevation of the top of the building from a foot of the tower is 30 degree. एक बिल्डिंग है, this is building and this is the tower AB PQ. टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का स्टेटमेंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा गया तो ये एंगल 30 डिग्री है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. ये फुट ऑफ द बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ से एंगल देखा गया 60 डिग्री है. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर दिया हुआ है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, H आपने निकालना. सिंपल क्वेश्चंस हैं. इन ट्राइंगल पी बी क्यू ले लेते हैं. पी क्यू अपॉन बी क्यू. पी क्यू आपकी ऑपोजिट साइड है, बी क्यू आपकी एडजेसेंट साइड है. इज टेंजेंट 60 डिग्री इज रूट 3.
बी के वो आपने निकालना था, पी के वो क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय √3। यहां से आप उल्टा कर लो तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू is opposite side upon adjacent side is tangent 30 degree is 1 by √3। ए बी की वैल्यू h है, बी क्यू therefore h is equal to 50 by 3, 16:2 by 3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेटमेंट पढ़ के आप इनकी रीडिंग कर लीजिए, क्वेश्चंस इजी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height ए बी सी डी दोनों इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट ईच साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, द लेंथ ऑफ दिस रोड इज 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole, एक पॉइंट ई ले लें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। अब इसको भी h ले लें, इसको भी h ले लें, ये x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल्स ए बी एंड ई, ए बी अपॉन बी ई मीन्स opposite side upon adjacent side is h upon 80 minus x is tangent 30 degree. h is equal to 80 minus x by √3, इसको आप नंबर 1 कह लीजिए। और इन ट्राइंगल्स सी ई एंड डी, सी डी अपॉन डी ई मीन्स opposite side upon adjacent side is equal to tangent of 60 degree. CD is your h, this is your x and this is your √3. So h is x into √3. From first and second दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय √3 आएगा। 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, x विल बी इक्वल टू 20। तो डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल्स विल बी 20, 80 माइनस 20 60। ये 20 है तो ये 60 आ जाएगा। एंड फ्रॉम सेकेंड हाइट ऑफ द पोल्स विल बी 20 √3 आ जाएगा।
क्योंकि आपके पास x जो है वो 20 आया था, सेकंड में मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो उससे आपका ये सम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stand vertically on a bank of a canal। ये कोई टीवी टावर है, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। कोई नदी के दूसरे किनारे पे हमने सी पॉइंट ले लिया, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर्स, the angle of elevation of the top to be 30 डिग्री। 20 मीटर्स हम इधर फुट ऑफ द टावर से इधर चले, डी पॉइंट आ गया, फिर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h निकाल देते हैं, विड्थ में आप x निकाल देते हैं, दिस इज 20 मीटर। तो x जो है ये विड्थ ऑफ द रिवर है, क्लियर। कैनाल दिया हुआ बुक ना, रिवर नहीं दिया होगा। नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी, ए बी अपॉन BC, opposite side upon adjacent side is equal to h upon x is equal to tangent 60 degree। So h is equal to x root 3। This is equation number 1। And in triangles ABD, AB upon 20 plus x, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री विच इज 1/√3। तो ए बी विल बी h है, तो दिस इज 20 प्लस x/√3, दिस इज नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के h इक्वल है, x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिवर इज 10 मीटर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम फर्स्ट, h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो आप यहां लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टीवी टावर is 10√3 meter. This is question number 11 I have taken. Question number 12. From the top of a 7-meter high building,
The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. देखिए, this is a building and this is your tower. Cable tower. This is 7 meter given to you. Angle of elevation of the top of the cable tower is given to be 60 degree and angle of depression is given to be 45 degree. हाइट ऑफ द टावर्स आपने निकालनी है. अब देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा और ये ऊपर वाले को हम एच मीटर मान लेते हैं. इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं. सबसे पहले हम ट्राइंगल्स ए पी एंड सी ले लेते हैं. तो पी सी अपॉन ए सी मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड विल बी टेंजेंट 60 डिग्री, विल बी √3. तो दिस इंप्लाइज ए सी विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √3. इसको नंबर 1 कह लें. हमने ए सी कैलकुलेट कर लिया. नाउ इन ट्राइंगल्स ए सी एंड क्यू, सी क्यू अपॉन ए सी. सी क्यू जो है वो ऑपोजिट साइड है और ए सी जो है वो एडजेसेंट साइड बन जाएगी. एंड दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, जो वैल्यू 1 होती है. अब सी क्यू जो है वो 7 है इज इक्वल टू ए सी. ए सी आपके पास h √3 है तो h कितना आ गया, 7 √3 मीटर आ गया. Therefore, height of cable tower 7 √3 plus 7, नीचे वाला 7 भी लेंगे तो √3 plus 1 मीटर. ये आपका फाइनल आंसर है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are this. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. देखिए ये कोई लाइट हाउस है ए बी. यहाँ दो शिप्स हैं, एक S1 और एक S2 है. दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशंस का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा. जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल इक्वल होगा, इसकी बात करेंगे तो ये इक्वल होगा. तो 30 डिग्री, यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा. ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा. और लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है. ये डिस्टेंस आपने x निकालना है. तो इन ट्राइंगल्स ए बी एंड S1, ए बी अपॉन
adjacent side upon opposite side will be equal to tangent cot 45 डिग्री, और ये 1 होता है, इसका मतलब BS1 इज इक्वल टू AB आएगा, और जो 75 मीटर है। और बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको नंबर 1 कह दें, AB एंड S2, तो वही रिजल्ट्स रहेगा कि BS2 अपॉन AB इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3। अब BS2 को आप क्या लिखेंगे, 75 प्लस x, क्योंकि तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, BS1 इज 75, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 75 प्लस x, AB आपके पास 75 है, डिवाइडेड बाय √3। तो x विल बी 75 बाय √3, ये कॉट आएगा, कॉट 30, कॉट 30 √3 होता है, ये √3 आएगा। तो 75 कॉमन, √3 माइनस 1, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स will be equal to 75 into √3 minus 1 meter. So this is all about today 7 questions of height and distance, exercise 9.1.